آیت نمبر 18 سے. وجاؤ، جا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آنا، کم، آنا. اور آئے جاؤ یہاں پہ آئے، آنا. یعنی پلورل ہو جائے گا، بہت سارے بھائی ہیں کیونکہ کئی بھائی ہیں اس وجہ سے. وجاؤ علی قمیصہ. اب یہاں پہ ایگزیکٹلی آپ اعلیٰ کا ترجمہ ورڈ ٹو ورڈ کریں گے تو تھوڑا سا اردو اچھی نہیں لگے گی. قمیص پر آئے یعنی شرٹ پر آئے، ایسا اچھا نہیں لگے گا، تو اس لیے جو ہے قمیص کے ساتھ آئے کر لیں گے ہم، کیونکہ جب پریپوزیشن میں نے کہا ہے کہ ایک لینگویج سے دوسرے لینگویج میں جاتا ہے تو ایگزیکٹلی ترجمہ نہیں ہوتا ہے، ترجمانی ہوتی ہے بلکہ. تو جا لیکن اعلیٰ کے پریپوزیشن کے ساتھ ہوتا ہے جب ہم کسی چیز کو دلیل کے طور پر لا کر کے پیش کریں. وجاؤ علی قمیصہ، وہ اس کی قمیص لے کر کے آئے، بدم کذب. دم مطلب کہتے ہیں خون، ٹھیک ہے، اور کذب مطلب جھوٹا. بدم کذب، جھوٹے خون کے ساتھ. سبیہ صاحبہ بتا پائیں گے دونوں پہ زیر کی کیا وجہ ہے؟ با کی وجہ سے، با پریپوزیشن، باقی وجہ مضاف اور با کی وجہ سے. مضاف ہے. جھوٹے کا خون. نہیں، مضاف ہے سر. کچھ آپ سبھی رابی صاحب بتا دیں، میں سن نہیں پایا. صفت اور موصوف ہے. ہاں صفت موصوف ہوگا، ٹھیک ہے نا. یعنی خون کی آواز. ہاں بھائی، خون کی صفت یہ ہے کہ وہ جھوٹا ہے، ٹھیک ہے نا. دمن، یہ اس کا مطلب خون ہوتا ہے، پلورل اس کی لکھ لیجئے دماؤن. دمن جمع دماؤن، دماؤن کہتے ہیں خون کو، ٹھیک ہے. ایک اور ورڈ اگر یاد رکھ پائیں، دموع عین کے ساتھ ہوتا ہے آنسو کے معنی میں، ٹھیک ہے نا. دموع عین کے ساتھ، تو دمن جمع دماء یہ خون کے معنی میں ہوتا ہے. بدمن کذب. قال، انہوں نے کہا، یعنی حضرت یعقوب نے کہا، بلکہ سولت لکم. سولا یسولو تسویلا کا مطلب ہوتا ہے گڑھ لینا، بنا لینا. سولت لکم، گڑھ لیا ہے تمہارے لیے، انفسکم، تمہارے نفسوں نے، تمہاری چاہت نے، تمہاری خواہشات نے، تمہارے اسپرٹ نے، امرا، ایک معاملہ، تم نے خود بخود ایک معاملہ بنا لیا ہے. ذہن میں رہے کہ یہاں پہ سولت ہم فیمنن لائے ہیں تا کے ساتھ. وجہ اس کی یہ ہے کہ نفس جو ہے یہ ایسا مؤنث ہے جس میں آپ کو کوئی علامت دکھائی نہیں دے گی، لیکن یہ مؤنث سماعی ہے، یعنی ایسا مؤنث جو سنا گیا ہو. آپ ریزن نہیں پوچھ سکتے بس کہ بس سما، عرب نے اس کو فیمیل استعمال کیا تو ہمیں بھی فیمیل استعمال کرنا ہے. بل سولت لکم، بلکہ گڑھ لیا ہے تمہارے لیے، بنا لیا ہے تمہارے لیے، انفسکم، تمہارے نفس نے، تمہاری چاہت اور خواہشات نے، امرا، ایک معاملہ. فصبر جمیل، تو صبر یہ خوبصورت ہے، صبر اچھا ہے، صبر بہتر ہے. واللہ، اور اللہ، المستعان، مدد کرنے والا. واللہ المستعان، مدد مستعان کہا جاتا ہے جس سے مدد چاہی جائے. the one from which we want help، جس سے ہم مدد چاہتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے واللہ المستعان، اور اللہ ہی سے مدد چاہی جاتی ہے. علی، اس چیز پر، ما تصفون، جو تم بیان کرتے ہو. اس کا ورب ہے وصفا یصفو وصفن، کا مطلب ہوتا ہے وصف بیان کرنا. وصفا یصفو وصفن، اسی سے بنا ہے. تصفون مضارع ہے، سیکنڈ پرسن پلورل، اسی لیے لاسٹ میں واؤ ایڈ ہوا ہے، اور سیکنڈ پرسن کے حساب سے اسٹارٹنگ میں تا ایڈ ہوا ہے. تو اگر میں بولوں کہ رابعہ صاحبہ، وصفت امامک، وصفت امامک بیتی. وصفت امامک بیتی. امامہ سامنے ہے نا سر، سامنے. گھر کے سامنے. وصفتا، سر وصفتا کا کیا بتایا تھا؟ یہاں کو صفت بیان کرنا، کوالٹی بیان کرنا، اس صفت. کو گھر، ایکسپلین کرنا. ہاں. وصف، کیا پھر سے وصفتا تو امامہ بیتی. بیتی. سر آپ کی آواز کٹی ابھی، وصفت سمجھ نہیں آئی. امامک بیتی. وصفت امامہ بیت. وصفتو مطلب ہماری صفت. میں نے صفت بیان کی. وصفت ذهبت اچھا، وصفتو، اچھا صفت بیان کرنا. جی، میں نے صفت بیان کی اپنے گھر کے سامنے کی. نہیں، امامک تمہارے سامنے. اچھا، بیتی امامک کا کس کی صفت بیان کی؟ بیتی، اپنے اپنے گھر گھر کی. کی، ہاں، اپنے گھر کی. ٹھیک ہے نا.
मुस्तान यहाँ पे नाउन है वैसे जिससे मदद तलब किया जाए, लेकिन इसका भी वर्ब अगर लिखना चाहें तो लिख ले, आसान सा वर्ब है इस्ताना। इस्ताना इसका माजी है इस्ताना, और यस्तईनु ये इसका मुबारे है। कोई बता पाएगा ये कहीं हमने पढ़ा है? नस्तईनु। नस्तईनु, ठीक है ना। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। नस्तईन मतलब हम तुझी से मदद चाहते हैं। हाँ, हम मदद चाहते हैं, ठीक है ना। नस्तईन, अस्तईन मैं मदद चाहता हूँ, ठीक है ना। इस्तान है उसी से मुस्तान जिससे मदद चाहिए जाए, ठीक है ना। ठीक है, क्लियर है? जरा सबिया साहिबा करें जरा, यहाँ तक का आप करें, बलसवला से सना साहिबा करेंगी। वजाहू और वो आए अला कमीस ही साथ कमीस के बिदामिन कदिब, बिदामिन जिसपे झूठा खून, झूठे खून के साथ, झूठे खून के साथ, हाँ ठीक झूठे है। खून के साथ। काला कहा बल बल्कि जैसे सवलत, काला बल सवलत, किसी और करना है। सना साहिबा सर क्या? कीजिए, काला बल सवलत। कौल बल्कि सवलत गढ़ लिया तुमने, लकुम यानी तुमने, अनफुसुहुम तुम्हारे नफ्स ने, तुम्हारे नफ्स किस्सा, ने, ठीक है किस्सा। ठीक है। फसब्रुन जमील, मतलब अब फसब्रुन जमील यानी अब मुझे सब्रुन जमील ही करना है जैसे। राबिया साहिबा उसके बाद वल्लाहुल मुस्तआनु अला मा तसिफून। राबिया साहिबा वल्लाहु और अल्लाह ताला मुस्तआनु मदद करने वाला है, अला मा तसिफून, अला ऊपर, मा नहीं, तसिफून नहीं, नहीं वाला माने ही है ये, माँ मा यहाँ पे जो वाले माने में, जो तसिफून, उस चीज पर जो तुम बयान कर रहे हो। तसिफून जो तुम बयान कर रहे हो। तुम कर रहे हो यानी जैसे तुम कह रहे हो, अब उस पर सिर्फ अल्लाह से ही मदद चाहिए जा सकती है, ठीक है। ओके चलिए, तो वजाअत सय्यारतुन, और आया एक काफिला। सय्यारा, हम जो अब ये यहाँ पे आपको फर्क समझ में आएगा वाज़ेह तौर पर कि क्लासिकल, जो मैंने स्टार्टिंग में पहली क्लास में हमने बात किया था कि क्लासिकल अरबिक और मॉडर्न अरबिक में क्या फर्क है। सय्यारा का मतलब मॉडर्न अरबिक में हमने क्या पढ़ा था? गाड़ी। गाड़ी। यहाँ पे है काफिला। दोनों में सिमिलरिटी काफिला। आपको दिखाई देगी कुछ कुछ, लेकिन माना फिर फर्क हो जाएगा। वजह सय्यारतुन, और एक गाड़ी आई, क्या आया? काफिला है। काफिला आया। काफिला आया। वजह सय्यारतुन, एक काफिला आया। फअरसलू, और उसने डाला, सॉरी भेजा, अरसला युरसिलु इरसालन। अरसला युरसिलु इरसालन का मतलब होता है भेजना। रसूल इसी से बना है, ठीक है ना, रसूल करीम। तो अरसलू, तो उसने भेजा, वारिदहुम, ठीक है। वारिद कहा जाता है उस शख्स को जो आने वाला हो, या खास तौर से कुएं पर जो पानी लेने जाए, ठीक है ना, अपने पानी भरने वाले को भेजा, वारिद। कुएं पर आने वाले को वारिद हम कहते हैं। तो उसने अपने पानी भरने, उसने का तर्जुमा मैं हम से कर रहा हूँ, वारिदहुम, काफिले वालों ने अपने पानी भरने वाले को भेजा। फअदला, तो उसने लटकाया। अदला युदली, डालना या लटकाना। अदला युदली, अदला या के साथ लिखा जाएगा जैसे यहाँ लिखा हुआ है, और युदली भी या के साथ लिखा जाएगा, या लाम या ली के साथ, ठीक है ना। फारसलू वारिदहुम, तो उन्होंने अपने पानी भरने वालों को भेजा। फादला, तो उसने लटकाया। दलवा, दलबुन बोलते हैं डोल को जिसमें पानी भरा जाए, अपने डोल को डाला। औला, उसने कहा, या बुशरा, यानी जब कभी खुशी हमारे हाथ आती है तो उसके लिए अल्फाज इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ हम बुशरा को बुला नहीं रहे हैं, बल्कि हम ये तर्जुमा करेंगे कि हाय खुशी, हाय खुशखबरी, हाय खुशखबरी। हादा गुलाम, ये तो एक बच्चा है। गुलाम यहाँ सर्वेंट वाला माना नहीं है, गुलाम हम बच्चे को भी कहते हैं, अरबिक में छोटे बच्चे को गुलाम कहा जाता है। हादा गुलाम, ये तो एक बच्चा है। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं हो रही समझने में? लिखने में दिक्कत हो रही सर। दिक्कत हो रही, लिखिए सुकून से, मैं रुक जाऊंगा। जी फिर अरे हाँ जी, फिर से रिपीट कर दीजिए। मैंने अरसला युरसिलू बताया, इरसालन भेजना। वारिदुन, सवलत गढ़, हाँ सव्वला सवलत गढ़ लिया था ना सर, युरसिलु, हाँ सव्वल, इसे लिख मानी लें। मुबारक तीनों लिखिएगा, और मसदर भी सवलत,
युसव्विलु, यहाँ पे पेश के साथ है, इसका मज़दार है युसव्विलु। जी यहाँ तक हो गया। तो ये यहाँ से मैं करता हूँ। यहाँ अरसला युरसिलू ना, हाँ, अरसला युरसिलु इरसालन, भेजना। रिसालत इस अरसला अरसला युरसिलु इरसालन। इस तरह के जो भी ऐसे वर्ब्स आएंगे ना जो 3 लफ्ज से ज्यादा होंगे, उनका मसदर फिक्स होगा हर स्ट्रक्चर का। जैसे अरसला अफआला के वजन पर है, अब अफआला के वजन पर जो भी वर्ब आएगा उसका मसदर इफ़आल ही बनेगा। अकरमा युक्रिमु इकरामन। और इस तरह का हमने भी बहुत सारे वर्ड पढ़े थे। मैंने आपको बताया था अदखला युदखलु इदखालन, जब हमने बात किया था दखला यदखलु का मतलब दाखिल होना, और अदखला मतलब कोई बताएगा? अदखला युदखलु दाखिल करना। दाखिल करना। तो अरसला युरसिलु इरसालन, करने वाला माना यहाँ भी आपको दिखाई दे रहा है, भेजना, ठीक है ना, किसी और से कोई काम करवाया जा रहा है, ठीक है। फारसलू, अपने पानी भरने वालों को ना। हाँ, वारिद मतलब पानी भरने वाला। असल माना होता है वारिद का कुएं पे जो आने वाला होता है, उसको हम बोलते हैं वारिद। उसके बाद वो माना हर चीज के हर जगह आने के लिए इस्तेमाल होने लगा। फारसलू वारिदहु फादला, अदला युदली इदलाअन, अदला युदली इदलाअन, वही अरसला के वजन पर है। उसने डाला, यहाँ भी करने का माना अदला इदला इदलाअन। मैंने आपको बताया कि अफ़आला के वजन पर अब जो भी वर्ब आएगा उसका मसदर इफ़आल ही बनेगा। इदलाअन, इरसालन, इदखालन, जो भी हमने अभी तक वर्ब पढ़े। अदला इदलान के मीनिंग क्या बताया सर आपने? डालना या लटकाना, डालना कर दें। डालना। पानी भरने वाले के लिए उर्दू में एक वर्ड यूज होता है, अगर याद रख पाए, साकी, सका या साकी का वर्ड यूज होता है, पानी पिलाने वाला, साकी। उर्दू शायरी में बहुत इस्तेमाल होता है। सका या साकी ना? हाँ, सका या साकी उर्दू का वर्ड है, उर्दू भी थोड़ा पानी सा। पिलाने वाला, हाँ, पानी पिलाने वाला होता है। हाँ, शायरी में यूज होता है। शराब पिलाने वाले को भी बोल देते हैं साकी। ठीक है। फादला चलो, काला या बुशरा, यहाँ पे बुशरा को बुलाएंगे। सर दल बहु उसने डाला ना। हाँ, डोल, डोल थोड़ा सा दल व डोल डाला उसने। हाँ, अलग है, सिर्फ दलबुन डोल है, दलबहू अपना डोल। अच्छा, थोड़ा सा टाइम राबिया साहब लग रहा है, लेकिन इंशाल्लाह याद होता जाएगा वर्ड, तो उसके परेशान नहीं होइएगा। अगर हम टाइम लगा रहे हैं उसका ठीक फायदा सर। है कि दिमाग में थोड़ा सा उसको हजम करने का मौका मिलेगा, वरना फटाफट जब करते हैं ना तो थोड़ा सा बैठता नहीं दिमाग में जल्दी, आई थिंक। पता नहीं किसकी हो गया, लिख लिया। गुलाम का मतलब दोनों लिखिएगा, बच्चा भी और सर्वेंट भी, खादिम भी। यहाँ पे बच्चा मुराद है। और गुलाम की जमा गिलमान आती है, गिलमान, गिलमान। चलें आगे, सबिया साहिबा इजाजत हो तो। जी गिलमान ना। हाँ, गिलमान। जी चलिए। ओके, तो बअसर्रूहु, वाव मतलब और, असर्रा युसिर्रु इसरारन, क्या मतलब होगा? कोई तुक्का लगा सकता है? पुर इसरार उर्दू में यूज होता है। इसरार मतलब होता है कि सर इसरार करना। वो साथ से, वो साथ से किसी चीज अच्छा को करना, तो छुपाने के माने में सीक्रेट को बोलते हैं इसरार। अच्छा। पुर इसरार कहानी है कि सीक्रेट कहानी है, ठीक है। तो देखिए अब कितना फर्क हो गया सौद और सीन से। इसरार है उस पे किसी बात पे जो है जिद करना, मतलब इंसिस्ट करना, और इसरार मतलब छुपाना किसी बात को। सिर्फ सौद और सीन से क्या फर्क हो गया? वह असर्रूहु, और उन्होंने इसको छुपाया, बिज़ाअतन, सामान के तौर पर। किसको छुपाया? हजरत यूसुफ को छुपाया। वल्लाहु, और अल्लाह, अलीमुन, ज्यादा जानता है, बिमा यामलून, जो वो कर रहे हैं, जो कुछ, बिमा जो कुछ, यामलून, अमिला यामलू अमलन, काम करना, अमिला यामलू अमलन, काम करना। क्लियर? एक आयत और कर लेते हैं, फिर दोनों को एक साथ रिवाइज करेंगे। बिज़ा इससे पहले आ चुका है, बिज़ातुन, बिज़ातुन जमा बिज़ा। चले आगे। सर रिवाइज एक बार रिपीट कर लीजिए सर, मैं चलिए नहीं सभी सुना। इंशाल्लाह कर देंगे। जी रबी रिपीट कीजिए आयत जरा। वजाअत जी सय्यारा, वजाअत, और आया सय्यारतुन, एक काफिला, फारसलू सरा पे और उसने भेजा। भेजा, और उसने भेजा वारिदा हम, पानी भरने वाला,
को भेजा, फ़अदला तो उसने डाला, दल वह अपना डोल, दल वहू अपना डोल, काला कहा, या बुशरा, या बुशरा मतलब खुशी से, है खुशखबरी। दो है इंग्लिश। खुशखबरी, हादा हादा गुलाम, ये बच्चा है, वासर्रु और उसे छुपा लिया, बिदाअतन, मैंने सर में नहीं सुना, उसने छुपाया उसको, हु ये हजरत यूसुफ के लिए, उसने उसको छुपाया, बिदाअतन सामान के तौर पर, सामान के तौर पर। अच्छा अच्छा, सामान के तौर पर, वल्लाहु और अल्लाह, अलीमुन ज्यादा जानने वाला है, बिमा उसे जो यामलू बावजूद के जो यामलून वो कर रहे थे, जो कर रहे हैं, ठीक है। तो वो बिदा कर रहे का हैं। मतलब आपको इस यानी खास तौर से कुरान ने बिदा का वर्ड इसलिए, क्योंकि आपको मालूम है कि इस बच्चे को इन्होंने छुपाया था किस लिए, आगे जाके क्या किया इसके साथ, बेचने के लिए। बेच दिया। तो एक तौर से सामान तिजारत बना करके उसको रखा था, और छुपाया इसलिए था कि अगर पूरे काफिले को वो पता चलेगा, सब में शेयर करना पड़ेगा ना फिर, और जिनको मिला सर, है। इस बिदौतन का माजी मुजाहरा बताया था क्या आपने? इसका बिदौतन का ये नाउन है ना, ये नाउन, सामान, नाउ नहीं। जी, बतौर सामान, तो नाउन का नहीं होगा, ठीक है। सर चलिए, व असर्रू छिपाने से है, और बिदअतन सुन नहीं पाया सर, दोनों बार हम डिस्टर्ब थे थोड़ा। असर्रू और छुपाया, असर्रू, और ये जो हु है ये उसको जी, यूसुफ के लिए, उसको, हाँ, वो यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए, और ये फिर बिदआ। बातन माले तिजारत के तौर पर, सामान के तौर पर, जी ठीक है। है ना। जब आपको आप सोनार ना हो, तो आपको सोने की कीमत मालूम नहीं होती, तो आप रद्दी के भाव उसको बेच देते हैं, वही हुआ है यहाँ पे। हजरत यूसुफ की बेचारों को कीमत मालूम नहीं थी और ले जाकर के बाजार में बेच दिया, ठीक है। तो वल्लाहु अलीमुम बिमा यामलून, अल्लाह ताला ज्यादा जानता है बिमा यामलून, जो वो जानते हैं। सही भी मालूम हुआ, अगर हर कोई आपकी कीमत को पहचानेगा नहीं, ये भी यहाँ से मालूम होता है। इन्होंने सामान्य तिजारत के तौर पर छुपाया था, अगर अपने पास रख लेते तो बहुत कुछ इनके लिए मुफीद हो सकता था। तो अगर कोई आपको कमतर समझे, तो आप समझिए कि इसको मेरी हैसियत का भी पता नहीं है। आगे चलें। वशरऊ, जी, और शरा यशरी शिराअतन, बेचना। शरा या के साथ लिखा जाएगा, यशरी, इसमें भी एक दो वर्ड और बताऊंगा मैं, इसको जगह रखिएगा दो तीन इसके साथ में। शरा यशरी व शरहू, और उन्होंने उसको बेच दिया, हु हजरत यूसुफ के लिए आया है, और उसको बेच दिया, बिसमनिन, कीमत में, बख्सिन, कम कम कीमत में, यानी जितनी, अब जाहिर सी बात है हजरत यूसुफ की कीमत वैसे भी कोई अदा नहीं कर पाएगा, छोटे कीमत में, कम कीमत में उसको बेच दिया। दराहिमा मादूदा, दिरहम की जमा दराहिम, मादूदा चंद, मादूदा मतलब चंद, सम, कुछ दिरहमों में, बिथमन बक्सिन, उन्होंने बेच दिया उसको कम कीमत पर, जो कि चंद दराहिम थे, बस चंद दिरहम में। वकानू फीही, और वो सब थे उससे, उसके सिलसिले में, हजरत यूसुफ के सिलसिले में, मिन जाहिदीन, बेरगबत, ना उसके अंदर इंटरेस्ट ना लेने वाले, इंटरेस्ट ना रखने वाले। क्लियर है बात। सर एक बार और पढ़ते हैं। वशरऊहु, और उन्होंने उसको बेच दिया। शरा इसका सिंगुलर है, और यशरी प्लूरल है, उसी का जमा यहाँ, सॉरी यशरी मुदारे है, शरा का प्लूरल आ रहा है शरऊ, शरऊ वाव ऐड हो गया या गिर गया। वशरऊ, उन्होंने बेच दिया उसको, बितमनिम, कीमत, समन मतलब कीमत, समनुन जमा अथमानुन, ठीक है ना। उसने उसको बेच दिया, बख्सिन, बख्स मतलब कम, कम कीमत पर बेच दिया, दराहिम मादूदा, चंद चंद दिरहम में, वकानू फीही मिन ज़ाहिदीन, और वो सब थे, फीही उसके सिलसिले में, यानी हजरत यूसुफ के सिलसिले में, मिन ज़ाहिदीन, बेरगबत, इंटरेस्ट ना लेने वाले। एक बार मैं बगैर लफ्जी उसके करता हूँ, और उन्होंने उसको कम कीमत पर, यानी चंद दराहिम में बेच दिया, और वो उसमें उससे बेरगबत थे, बेरगबत थे, ठीक है। क्लियर है। यस। एक दो चीज समझिएगा। एक बात तो शरा यशरी, शरा यशरी मैंने आपको बताया क्या माने है, बेचने से। बेचना को बेचना। बेचना। अच्छा, एक शायद हमने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, इसी से एक वर्ड बनता है इश्तरा, यश्तरी, क्या मतलब है, कोई बता पाएगा। इश्तरैतुल सर कलम, खरीदने। खरीदना। अब इसी से शरा से इश्तरा बन गया, इश्तरा यश्तरी, खरीदना। और सेम वर्ड अगर आप याद रख पाए, इसी तरह बाआ, बाआ का मतलब होता है, क्या होता है, कोई बताएगा। बेच बेचना। बेचना, बाआ यबीउ होता है बेचना। और इसी सेम वर्ड से इब्ताआ, पता नहीं मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, कंफ्यूज ना हो जाएं आप,
इब्ताअ यब्ताउ, इसका मतलब क्या हो सकता है? जब शरा का मतलब बेचना सर था, ये भी इश्तरा का खरीदना मतलब होगा। खरीदना हो गया। हाँ, तो बाआ का मतलब बेचना, तो इब्ताअ का मतलब क्या हो गया? खरीदना। खरीदना। अच्छा, शरा, फिर से मैं रिपीट करता हूँ, शरा यशरी बेचना, इश्तरा यश्तरी खरीदना, उसका उल्टा। बाआ यबीउ बेचना, और इब्ताअ यब्ताउ खरीदना। समझ पा रहे हैं? जी। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है, मैं कहीं रिसर्च नहीं है लेकिन लगता है बाय का जो वर्ड है, बाय इंग्लिश ने जो लिया है, मेरे ख्याल से यही बा से लिया है, कहीं से होगा शायद, क्योंकि इंग्लिश ने बहुत सारे वर्ड्स लिए हैं अरबिक से, जैसे कि हमने बात किया था बाय। हालांकि बाय का मतलब खरीदना होता है, और यहाँ बा का मतलब बेचना होता है, लेकिन उसी के जो एक्सेंट है, इब्ताअ का मतलब बेचना होता है, सॉरी खरीदना होता है। समझा पाया मैं बात अपनी जल्दी जल्दी? जी। अच्छा, एक बात और, जाहिदीन मिनज जाहिदीन, वो उससे बेरगबत थे। आपने वर्ड उर्दू में सुना है जोहद और तकवा? मैं ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि याद रखना थोड़ा आसान हो जाए। जोहद या जाहिद इंसान को किसे कहा जाता है? वो बड़े आबिद और जाहिद है, यानी ऐसे इंसान को जाहिद कहा जाता है जो इंसान दुनिया में रगबत ना रखता हो, अल्लाह वाला हो, जिसे हम कहते हैं अल्लाह मियाँ की गाय है, यानी जिसको दुनिया में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ना हो, उसको जाहिद कहा जाता है। और जोहद और तकवा ये सिफत है, ऐसे लोग, ये एक सिफत है जो जिसके अंदर होती है, यानी जिसको दुनिया से बहुत ज्यादा लगाव नहीं होता है। तो जोहद अगर आपने सुना है तो आप जाहिदीन के वर्ड को याद रख पाएंगे। यहाँ पे जाहिदीन का माना वो नहीं है दुनिया से बेरगबती, यहाँ पे फी ही के साथ जोड़ दिया है हजरत यूसुफ के साथ, कि उनको हजरत यूसुफ में कोई इंटरेस्ट नहीं था, यानी उनको उसमें कुछ नहीं चाहिए था, बस उससे पैसा कमाना था, बेचा और पैसा लिया। चलें आगे। यस सर। ठीक है। वकाल, और कहा, अच्छा आ गया वो वर्ड जो मैंने आपको बताया था, वकाल और कहा, अल्लदी इश्तराहु, जिसने इश्तराहु, आप ही बताएं। उसे खरीदा। हाँ, जिसने उसे खरीदा था, शरा का मतलब बेचना पड़ा था, इश्तरा मतलब खरीदा। तो जिसने उसे खरीदा था उसने कहा, अब ये वाला हु किसके लिए है, कोई बताएगा? मूसा यूसुफ अलैहिस्सलाम, अरे यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए। मैंने कहा मूसा सलाम कहाँ से आ गए? तो जिसने नहीं उसे, नहीं, वो धोखे तो से। सही है, मैं मिस्र, जिसने मिस्र से खरीदा था उसे, ले इम्राअतीही, अपनी बीवी से कहा। देखिए कुरान का यहाँ कमाल, मिस्र का मतलब शहर का भी होता है, और मिस्र एक जगह का नाम भी है। एक ही वर्ड जिक्र करके कुरान ने दोनों को जिक्र कर दिया, क्योंकि अक्सर और बेशतर ये जो हुकूमत के बारे में बयान किया जाता है, ये उस इलाके का यानी सिटी थी एक, यानी एक मदीना एक तौर से था जहां से गवर्नमेंट चला करती थी। तो आप इसका तर्जुमा, मिस्र का तर्जुमा आप जो है जगह से भी आप कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा तर्जुमा लोगों ने शहर से ही किया है। शहर के जिस आदमी ने उसे खरीदा था, उसने कहा लि इम्राती ही, इमरा मतलब औरत। 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 यहाँ पे क्या खास माना होगा हु इमरा का? ही, बीवी। इमराती ही, उसकी और उसकी। बीवी। अपनी औरत से कहा, यानी बीवी मुराद होगी, यानी इमरा का मतलब सूरह लहब में भी हम लोग पढ़ चुके हैं, याद है किसी को? यस सर। वो जी, इम्रा, वो जी। गट्ठर उठाने वाला। हाँ। तो इमरा का मतलब जनरली औरत का होता है, वुमेन का होता है, लेकिन जब किसी मर्द के साथ जिक्र किया जाए तो उर्दू में भी हम लोग बोलते हैं वो फलाना की औरत है, तो औरत का बीवी का तर्जुमा यहाँ पे हम करेंगे। हालांकि बीवी के लिए वैसे अरबिक में क्या वर्ड आता है खालिस? जोजा। जौजा। ज़ौजा। अच्छा, कुरान ने जहां जौजा यूज किया है वहां इमरा नहीं, और जहां इमरा वहां जौजा नहीं, स्पेसिफिकली मेरे दिमाग में भी आ नहीं रहा, कुछ फर्क है बारीक सा, यानी कुरान ने इंटेंशनली कहीं पे जौजा को छोड़ के इमरा यूज किया, और कहीं इंटेंशनली, हाँ बल्कि शायद मुझे याद आ गया, जहां किसी नेक खातून का जिक्र कर रहा है कुरान, वहां जौजतुन का उमूमन जिक्र करता है। जहां किसी अजनबी या फिर किसी ऐसे खातून का जिक्र करता है जो बहुत मतलब परहेजगारी के उसमें नहीं है, या अच्छे उस मिसालों में नहीं है, उसमें इमरा का शायद वर्ड, नबियों की बीवियों के साथ जौजा का आई थिंक वर्ड यूज हुआ है, ऐसा फर्क है थोड़ा। तो बता रहा मैं ये चाहता हूँ कि कुरान, अगर अरबिक जबान पे हम ये बात करते हैं कि अरबिक जबान यानी एक लफ्ज के लिए बहुत सारे लफ्ज इस्तेमाल करती है, और कुरान ने उन 10 लफ्ज को छोड़ करके एक लफ्ज यूज किया है, तो उसका जरूर कोई ना कोई रीजन होगा, हमें भले मालूम होना मालूम, उसमें से बहुत सारे रीजन हमें मालूम होते हैं, बहुत सारे मालूम नहीं होते। तो जब भी एक वर्ड के लिए 10 वर्ड छोड़ करके कुरान एक वर्ड यूज कर रहा है, तो उसके पीछे कोई रीजन जरूर होगा, जो कि स्कॉलर्स ने तहकीक करके बताया कि यहाँ पे ये रीजन, जिन्होंने पूरे कुरान को वो किया था तब वो किया उसने बताया। तो इश्तराहु इमराती, अपनी बीवी से कहा, अकरीमी मसबाहु, अकरमा युक्रिमु इकरामन, का मतलब होता है
अक्सर असल मतलब होता है इज्जत करना, इकराम करना, ठीक है ना, रिस्पेक्ट करना। और मसवा का मतलब होता है ठिकाना, रहने की जगह। अकरीमी मसवाओं को दोनों का मिल करके तर्जुमा होगा इनका अच्छा रहन सहन का इंतजाम करना, इनका ख्याल रखना, आप जिसको उर्दू जबान में कहें, इनका अच्छे से ख्याल रखना। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? सबिया साहिबा, ये अजीज मिस्र बीवी से कह रहा है ऑर्डर देते हुए अकरीमी मसवाओं। अगर यही बात हम किसी मर्द से कह रहे होते तो क्या बोलते? हाँ, अकरम, अकरम इसके इकराम करना। लफ्ज क्या होता? अकरमा। आप बताइए राबिया साहिबा। सना साहिबा, कैन यू? सर क्या? सवाल यह है कि यहाँ पे अजीज मिस्र अपनी बीवी को ऑर्डर दे रहा है तो अकरीमी का वर्ड यूज किया गया है। मेरा सवाल यह है कि अगर किसी मर्द को हुक्म दिया जा रहा होता तो क्या लफ्ज यूज होता अकरीमी की जगह? तकरम, तकरम। अकरिम, बस मीम साकिन हो जाता। अकरम, जैसे और मैं इसीलिए कुछ रिवाइज करवाने की कोशिश करता हूँ। हमने ऑर्डर पढ़ा था, सर क्यों? मैं बता रहा हूँ। अकरम। ऑर्डर हम बनाते हैं जैसे मुदारे से। तदहबीना का मतलब है तुम जाती हो, ऐसा ही है तदहबीना, जी। तुम जाती हो। ऑर्डर बनाने के लिए क्या काम करते हैं बताइए, आप खुद ही बताइए अब। सर नून गिरा देते हैं और नून गिरा दिया, ता गिरा ताप दिया, ता 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 किधर गिरा दिया। लगाएंगे? हमजा। हमजा, क्या बन गया अब? इज़हबी। बना नहीं बना? जी जी समझ में आए तभी जी बोलिएगा, बिल्कुल भी डाउट ना रहे। जी जी, समझ आ गया, नहीं आ गया। अब जब ऑर्डर को हम देंगे तो तदहबू से बनाएंगे, तदहबीना से नहीं बनाएंगे। तदहबू से जब हम बनाएंगे तो ता को गिराया, लास्ट को साकिन कर दिया, इज़हब। वैसे अकरिम। क्लियर? जी जो भी नया वर्ब आए उसको यूज कर लीजिए तभी आपका वो बन पाएगा, वरना सिर्फ जैसा किताब में है वैसा यूज करें तो आपके कस्टडी में नहीं आ पाएगा वो वर्ड। अकरीमी मसबाहू, इसका इकराम करना। आशा, उम्मीद है कि अन यनफाना, कि वो यनफाना, नफा यनफाउ, नफान का मतलब फायदा पहुंचाना। अन यनफाना, ये हमें फायदा पहुंचाए, हमें के लिए ना का लफ्ज लास्ट में जुड़ा है अटैच प्रोनाउन के तौर पर। उम्मीद है कि हमें फायदा पहुंचाए। औ या फिर नत्तखिदहू, इत्तखज़ा यत्तखिजु, बनाना। इत्तखज़ा यत्तखिजु, बनाना। औ नत्तखिजहू, या हम उसको बना लेंगे, वलदा, क्या बना लेंगे? बेटा। बेटा बना लेंगे। अब आप यहाँ पे फर्क देख सकते हैं, एक ताजिर ने हजरत यूसुफ को देखा तो उसने ले जाके बेच लिया, और अजीजे मिस्र ने एक नजर में भाप लिया कि ये बहुत काम का आदमी है, इसकी न सिर्फ इसको नौकर की तरह रखा जाना चाहिए बल्कि ये इसको इज्जत के साथ अपने बेटे बनाने तक की वो बात सोचने लगा। एक नए आदमी से मिल करके आप फौरन उसको बेटा बनाने की सोचने लगे, इसका मतलब कि पॉलिटिक्स आपको बहुत अच्छी तरह से आती है, समझ पा रहे हैं? तो ये अच्छी तरह जानता था, तभी इसने बगैर तजर्बा किए देख करके पहचान लिया बातचीत के अंदाज से, उठने बैठने के अंदाज से, कि जबरदस्त आदमी है। तो उम्मीद है कि ये हमें फायदा पहुंचाएगा। हमें नहीं पता कहाँ से ग्रेजुएट है लेकिन हमें फायदा जरूर पहुंचाएगा, या हम इसको अपना बेटा बना लेंगे। ये पॉलिटिक्स, ऐसे ही पॉलिटिक्स नेता कोई ऐसी नहीं बनता है, उसके अंदर होती है कोई क्वालिटीज अंदाज की। वकदालिका, और इसी तरह, मक्कन्ना, मक्कना युमक्किनु तमकीनन। जल्दबाजी तो नहीं हो रही सबिया साहबा? और इस लेकिन वीडियो सुन लेंगे, आप करिए रन। नहीं, बता दीजिए। रुकने से फायदा ही होगा कि याद हो जाएगा। लिख लीजिए कौन कौन से वर्ड रह गए, बाकी लोग भी लिख लेंगे। वीडियो सर बहुत, है बस रहन वीडियो सुन लेते हैं बाद में। चलिए ठीक है, अच्छा है फिर। मक्कना, मक्कना युमक्किनु तमकीनन। मक्कना युमक्किनु तमकीनन का मतलब होता है कि जगह देना, ठिकाना देना, ठीक है ना। और मकान का वर्ड शायद इसी से बना हो, मकान, क्योंकि वहां पे हमारा ठिकाना होता है, जगह होती है हमारी। मक्कन्ना, हमने जो है जगह दिया, अल्लाह ताला कह रहा है लियूसुफ, हमने जगह बनाई और यूसुफ के लिए, फिल अर्द, जमीन में। वो इंसान जिसको कुएं में डाल गया दिया गया था, महल में अल्लाह ताला ने उसके लिए जगह दे दी। ये चीजें पढ़ के बहुत तवक्कुल आता है। वलिनुअल्लिमहु, और ताकि हम सिखाएं, मिन तवील हदीस, बातों की समझ, इससे पहले आ चुका है ये, इसलिए मैं इसको अल्लमा युअल्लिमु तालीमन, सिखाना, तालीम इसी से बना है, एजुकेशन। अल्लमा युअल्लिमु तालीमन। थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करेंगे राबिया साहब, क्या मतलब, कैसे सिखाएगा अल्लाह ताला?
सर क्या यहाँ पे कैसे अल्लाह ताला सिखाएगा गुलाम बना करके हजरत यूसुफ को? कहाँ आपकी पर ताबीर सर? दीजिए। कह रहे हैं कि अल्लाह ताला कह रहा है हमने यूसुफ को जमीन में जगह दे दी ताकि हम उसको सिखाएं बातों की तावील। जी, ये तो हजरत याकूब के बाद पास भी अल्लाह ताला सिखा सकता था, ये गुलाम बना करके यहाँ लाके सिखाने की क्या जरूरत है? क्योंकि वो जेल में रखा था, तो फिर वहां पे। ये तो बहुत बाद में आएगा। तो बेसिकली अब जिस जगह पे अब अगर आप महल में आप रह रहे हैं तो महल में जो तजर्बा आपको मिलेगा वो एक घर के अंदर आपको नहीं मिलेगा। महल में वुज़रा भी आएंगे, जेलर्स भी आएंगे, नेक लोग भी आएंगे, बद लोग भी आएंगे, छोटे बड़े सब आपके पास आएंगे। वहां पे आपको नौकर से भी मुलाकात का मौका मिलेगा और बड़े बड़े नेता से मुलाकात का भी मौका मिलेगा। तो जो चीज वहां पे रह करके एज अ तजर्बे के ये सीख सकते हैं वो शायद अपने गांव में रह करके नहीं सीख पाते। तो वली नुअल्लिमहु, और इसलिए हमने किया ताकि हम उसको सिखाएं। अल्लाह ताला कह रहा है मिन तावील अहादीस, बातों की समझ को। अब यहाँ पे आकर के इनको पॉलिटिक्स भी आ जाएगा, इकोनॉमिक्स भी आ जाएगा, लेन देन कैसे की जाती है, नेतागिरी भी अपनी जगह आ जाएगी, और यानी सर्वेंट के साथ कैसे रहना है, एम्प्लॉय के साथ कैसे रहना है, और बड़े लोगों के साथ कैसे रहना है, छोटे लोगों के साथ कैसे रहना है, वो सारी चीजें यहाँ सीख जाएंगे। वल्लाहु गालिबुन, और अल्लाह ताला गालिब है, यानी अपने काम, गालिब का मतलब होता है कि अपने काम को कंप्लीट करने वाला, गालिब है अला अमरिही, अपने मामले पर, वलाकिन्ना, लेकिन, और लेकिन, अक्सर अन्नासी, अक्सर लोग, ला यालमून, नहीं जानते हैं। ये सना साहिबा, अक्सरा पे जबर की वजह अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या आप मुझे बता पाएंगे, आप मायूस करेंगी? सना साहिबा, हाँ सर, अक्सर नासी में नंबर्स आ रहे हैं, नंबर्स की जबर वजह की से। वजह कोई बताएगा? सर अक्सर सर वो की बलाकिन की फैमिली वजह से, लाकिन, बलाकिन की वजह। लाकिन इन्ना की फैमिली हमने इन्ना अन्ना, अन्ना लाकिन्ना लैता लअल्ला। इन्ना की फैमिली क्या काम करती है? जिसकी बात की जा रही होगी उसको हालत नसब, हाँ। और जो बात की जा रही है उसको हालत रफा में। फिर एक बार मैं इस आयत की फिर से करता हूँ, देखिएगा। वक़ाल अल्लज़ी, और कहा, अल्लज़ी इश्तराहु, जिसने उन्हें खरीदा था, मिन मिस्र, मिस्र से यानी शहर से, लिइम्राती, अपनी बीवी से कहा, अकरिमी मसवाहु, इनका अच्छे से ख्याल रखना, रहन सहन का, ऐसा उम्मीद है कि अन यनफ़अना, ये हमको फायदा पहुंचाए, औ नत्तखिदहु, या हम इसको बना ले, वलदा, लड़का, वकज़ालिका, और इस तरह, मक्कन्ना, हमने जगह दे दी यूसुफ को, फिल अर्दी, जमीन में, वलिनुअल्लिमहु, ताकि हम यूसुफ को सिखाएं, तालीम दें, मिन तावील अहादीस, बातों की हकीकत की, बातों की तावील की, बातों के मतलब की। वल्लाहु गालिबुन, और अल्लाह ताला गालिब है, अला अमरिही, अपने मामले पर, वलाकिन्ना अक्सर अन्नासी, लेकिन अक्सर लोग, ला यालमून, नहीं जानते हैं। कुछ सेकंड बचे हैं, कुछ सवाल करना हो कर ले, शायद हो पाए या ना हो पाए, देखेंगे, वरना बस दैट्स ऑल फॉर टुडे। चलिए, अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला कुरान करीम का समझना और समझाना और लोगों तक पहुंचाना हम तमाम लोगों के लिए आसान से आसान कर दे, इसके मोतियों को निकालने की सलाहियत और तौफीक भी दे, और मवाक़े और जो है उसके लिए जो है सलाहियतें हमें अता करे। आमीन या रब्बल आलमीन। आज इतना ही रखते हैं, इंशाल्लाह जो सवाल अगर रह गया होगा तो व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह पे पूछ लीजिएगा इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व